Hello, my dear learners. Welcome back to my YouTube channel, Learn English with Neha. And today in this video, we are gonna share a very important information that is very useful for your storytelling and for narrating your past incident. And today's tense is past perfect tense. Yes, past perfect tense is very important tense, and generally many learners get confused about the usage of past perfect tense. They generally mix the usage of past perfect tense with past indefinite tense, so they always remain confused where we have to use past indefinite tense and where we have to use past perfect tense. Before telling you the difference between past indefinite and past perfect tense, let me tell you the usage. It means the structure. First of all, the structure of past perfect tense, so that you can frame sentences as per the rule of past perfect tense. Okay, so with a view to making sentences as per the rule of past perfect tense, it is necessary to know the structure. So let's have a look at the structure. So the structure of past perfect tense is subject plus had plus v3 plus object. Okay, subject plus had plus v3 plus object. And when we are talking about negative sentence, so we have to use not with had. It means subject plus had not plus v3 plus object. Okay, so your positive structure is subject plus had plus v3 plus object. Let's suppose if I say मैं पहले ही अपना होमवर्क कर चुकी थी, मैंने अपना होमवर्क कर लिया था. आई हैड कम्प्लीटेड माई होमवर्क, मैंने पहले ही उसे बता दिया था. आई हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हिम. ठीक है. या फिर हम कह सकते हैं कि मैं वो पहले ही वहाँ जा चुका था. ही हैड ऑलरेडी गॉन देयर. ठीक है. तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव sentences in past perfect tense. And if I talk about negative sentences, so as I already told you that you have to use not with had, right? Subject plus had not plus v3 plus object. मैंने पहले ही खाना नहीं खाया था, या मैंने खाना नहीं खाया हुआ था. had not, I had not eaten food. उसने मुझे पहले से ही नहीं बताया हुआ था. he had not informed me. ओके. ओके, वो नहीं गया हुआ था. he had not gone there, right? And if I talk about interrogative structure, so you all know that we have to use helping verb at the beginning of the sentence in interrogative sentences, right? So you have to use had at the beginning of the sentence. Had plus subject plus v3 plus object. had plus subject plus v3 plus object. क्या तुमने पहले ही खाना खा लिया था? had you already eaten food. क्या तुमने पहले ही उसे बता दिया था? had you already told him. या इन्फॉर्म कर दिया था? had you already informed him. ओके. क्या तुम पहले ही वहां चले गए थे? had you already gone there. ओके. Now let's have a look at the negative interrogative structure. So again, we can make this structure by two ways. First way is using not at the beginning of the sentence with the helping verb, right? So as per the first way, your structure will be hadn't. Hadn't plus subject plus v3 plus object. Hadn't plus subject plus v3 plus object. Okay. And the second way is using not at the third place in the sentence, right? So as per the second way, your structure will be had plus subject plus not plus v3 plus object. Had plus subject plus not plus v3 plus object, right? Okay, let's take some examples. क्या तुमने पहले ही खाना नहीं खा लिया था? Hadn't you eaten food? Hadn't you already eaten food? Or had you not already eaten food? क्या तुम वहां नहीं चले गए थे? Hadn't you gone there? Or had you not gone there? क्या उसने तुम्हें पहले से ही नहीं बता दिया था? Had he not told you earlier? Or hadn't he told you earlier? Right? So this is negative interrogative structure, right? Now what is the difference between past indefinite tense and past perfect tense? So I will be telling you this difference by giving you one example. Okay, so the example is, for example, I'm narrating you a story, right? Story is that मैं अपने घर पर थी
कल मैं अपने घर पर थी, मैं बोर हो रही थी। मैं मार्केट जाना चाहती थी। मैंने सोचा कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ मार्केट जाना चाहती थी। ओके, मैंने सोचा कि चलो मेरी फ्रेंड के साथ मैं मार्केट जाती हूँ, तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ मार्केट जाना चाहती थी। फ्रेंड के साथ मार्केट जाने के उद्देश्य से मैं उसके घर गई, उसके घर पहुंची और मुझे पता चला कि वो पहले से ही मार्केट गई हुई है। ठीक है, मुझे ये पता चला कि वो पहले से ही मार्केट गई हुई थी, राइट। तो ये सारा चीज़ें आपकी कहाँ चल रही है, पास में चल रही है कि मैं बोर हो रही थी और मैं मार्केट जाना चाहती थी, मैं उसके घर गई, मैं उसके घर पहुंची और मुझे पता चला कि वो पहले से ही मार्केट गई हुई थी। ठीक है, ये सारा आपका पास्ट में है। तो लेट्स ट्रांसलेट दिस स्टोरी। ओके, सो yesterday I was at my home, I was getting bored, I wanted to go to the market with my friend. With a view to going to the market with my friend, I went to my friend's house. I reached there. I came to know, मुझे पता चला, I came to know that my friend had already gone to the market. अब मैंने यहाँ my friend had already gone to the market का यूज़ किया। मैंने ये नहीं बोला कि my friend went to the market, कि पास है तो went to the market लगाएंगे, नहीं। क्यों? आपको ये समझना होगा कि आप बोर हो रहे थे, आपने ऐसा सोचा, फिर आप अपने फ्रेंड के घर गए, फिर आपने जो है वहाँ पहुँचे, फिर आपको पता चला। ये सारा जो सीरीज़ है एक्शन का, आपका पास्ट में चल रहा है और वो एक ही कह सकते हैं कि एक सीरीज़ में चल रहा है। जो आपका सीरीज़ ऑफ एक्शन है, घटनाक्रम जो है वो पास्ट में ऐसे एज इट इज़ चल रहा है। ठीक है, लेकिन फ्रेंड के जाने का, जो फ्रेंड जो मार्केट पहले ही चली गई थी, वो इस जो एक्शन ऑफ सीरीज का हिस्सा नहीं है, इस घटनाक्रम का हिस्सा नहीं है। इस घटनाक्रम का हिस्सा नहीं है क्यों? क्योंकि उसके जाने का काम इस काम से पहले ही हो गया था। तो आप कह सकते हो कि पास्ट में नहीं हुआ, वो डीप पास्ट में हो गया था। ठीक है, तो इसीलिए उस वाले काम को हम सिंपल पास्ट में नहीं रखेंगे, उस वाले काम को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में रखेंगे। ठीक है, तो वहां पे आप कहेंगे कि माई फ्रेंड हैड ऑलरेडी गॉन टू द मार्केट। आई केम टू नो, मुझे पता चला, माई फ्रेंड हैड ऑलरेडी गॉन टू द मार्केट। yesterday I was at my home, I was getting bored, I wanted to go to market with my friend. फ्रेंड के साथ मार्केट जाने के उद्देश्य से, विद अ व्यू टू गोइंग टू द मार्केट विद माई फ्रेंड, आई वेंट टू हर हाउस, मैं उसे घर गई। आई रीच देयर, मैं वहाँ पहुँची, मुझे पता चला, आई केम टू नो दैट माई फ्रेंड हैड ऑलरेडी गोन टू द मार्केट। माई फ्रेंड हैड ऑलरेडी गोन टू द मार्केट। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कहीं किसी चीज़ में सिलेक्शन हो गया है और इसके बारे में मैंने ब्रदर को पहले ही बता दिया है, अब मैं फादर को बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये मैं स्टोरी टेलिंग कर रही हूँ। अब मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। कि क्या था कि मेरा सिलेक्शन के बारे में मैंने अपने भाई को तो पहले ही बता दिया था, अब मैं अपने फादर को बताना चाहती थी। ठीक है, और पापा को बताने के लिए मैं पहले अपने होम टाउन गई, वहाँ पहुँची और मेरे फादर ने मुझसे सिलेक्शन के बारे में पूछा। ठीक है, मेरे फादर ने मुझसे सिलेक्शन को लेके कुछ क्वेश्चंस करने शुरू किए। तब मुझे पता चला कि मेरे भाई ने पहले ही मेरे फादर को मेरे सिलेक्शन के बारे में बता दिया है। ठीक है, तो ये जो भाई का बताना था वो मेरे वाले जो पास्ट में एक्शन चल रहे थे उससे भी पहले हो चुका था, इसीलिए वहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ हुआ। ठीक है, तो इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे? I wanted to tell about my selection to my father and I had already told about my selection to my brother. मैं फादर को बताना चाहती थी और मैं अपने भाई को पहले ही बता चुकी थी। तो फादर को बताना चाहती थी, इससे पहले मैं भाई को बता चुकी थी, ये काम भी पहले हो चुका था। ठीक है, तो इस वाले एक्शन से पहले का काम है डीप एक्शन, डीप पास्ट, तो उसमें भी हैड प्लस V3 ही लगेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस लगेगा। आई वॉन्टेड टू टेल अबाउट माई सिलेक्शन टू माई फादर एंड आई हैड ऑलरेडी टोल्ड अबाउट माई सिलेक्शन टू माई ब्रदर। ओके, सो फॉर टेलिंग अबाउट माई सिलेक्शन टू माई फादर आई रीच्ड माई होम एंड आफ्टर रीचिंग माई होम, घर पहुंचने के बाद मेरे फादर ने मुझसे सिलेक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछना शुरू किया। माई फादर स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस
अबाउट माई सिलेक्शन। तब मुझे पता चला कि मेरे भाई ने पहले ही मेरे फादर को मेरे सिलेक्शन के बारे में बता दिया। देन आई केम टू नो दैट माई ब्रदर हैड ऑलरेडी टोल्ड अबाउट माई सिलेक्शन टू माई फादर। क्यों पास्ट परफेक्ट हुआ? क्योंकि वहां पे वो एक्शन मेरे वाले एक्शन से, पास्ट वाले एक्शन से की सीरीज से भी पहले हो चुका है, इसीलिए। ओके, so this is the usage of past perfect tense, and this is the difference between the past indefinite tense and past perfect tense. Okay, let's have a look at the other usage of past perfect tense. So when you find two actions in past, okay, when you find two actions in past and one action had already been done in past before the second action that was also done in past, okay, then in case you also have to use past perfect tense, right? अगर आपको दो एक्शन मिलते हैं पास्ट में, दो एक्शन हैं और एक एक्शन पहले ही हो चुका है पास्ट में, कौन से एक्शन से? दूसरे एक्शन से पहले ही हो चुका है। दूसरा एक्शन में पास्ट में हुआ है, दोनों एक्शन पास्ट में हुए हैं, लेकिन एक एक्शन दूसरे एक्शन से पहले हुआ है, तो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना होगा। डोंट बी गेट कंफ्यूज्ड। लेट्स टेक वन एग्जांपल। एक बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है जो कि आप न्यूज़ उसमें अपनी बुक्स में देखते हो। तो वो एग्जाम्पल है डॉक्टर के आने से पहले ही रोगी मर चुका था। ठीक है, तो डॉक्टर का आना भी पास्ट में था और रोगी का मरना भी पास्ट में था, लेकिन इन दो एक्शन में से पहला काम जो है रोगी के मरने का हुआ। ठीक है, तो वो जो पहला काम हो चुका उसको आप पास्ट परफेक्ट टेंस में रखेंगे और जो दूसरा काम जो कि हुआ पास्ट में ही है उसको आप सिंपल पास्ट टेंस में रखेंगे। ओके, सो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। तो इस तरीके के सेंटेंसेस भी जहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर है कि दो एक्शन है, दोनों ही एक्शन पास्ट में है, लेकिन एक एक्शन दूसरे एक्शन से पहले ही हो चुका है, तो जो पहले एक्शन हो चुका है उसको आप पास्ट परफेक्ट टेंस में रखेंगे। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि मान लीजिए मैं कुछ प्रोडक्ट खरीदना चाहती थी और मेरे शॉप पर पहुंचने से पहले ही प्रोडक्ट बिक चुका था। ओके, शॉपकीपर ने प्रोडक्ट दे दिए थे, सारे प्रोडक्ट्स बेच दिए थे। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगी? शॉपकीपर हैड सोल्ड ऑल प्रोडक्ट्स। शॉपकीपर हैड सोल्ड ऑल प्रोडक्ट्स बिफोर आई रीच्ड। मेरे पहुंचने से पहले ही शॉपकीपर सारे प्रोडक्ट्स बेच चुका था। ठीक है, ओके, इसी तरीके से मेरे कुछ बताने से पहले ही शाम ने उसको बता दिया था। ठीक है, मेरे कुछ बताने से पहले ही शाम ने रोहन को बता दिया था, मान लीजिए। ठीक है, मेरे कुछ बताने से पहले ही शाम ने पहले ही रोहन को बता दिया था, तो रोहन को बताने का काम जो शाम जो है वो पहले ही कर चुका है और मेरा काम जो है वो बाद में है। ठीक है, तो श्याम हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड टू रोहन बिफोर आई सेड समथिंग। मैं कुछ कहती उससे पहले ही रोहन को श्याम ने बता दिया था। श्याम हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड टू रोहन बिफोर आई सेड समथिंग। ओके, इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि मेरे बर्थडे पर पहुंचने से पहले ही केक कट चुका था, या मेरी फ्रेंड ने केक काट लिया था। माई फ्रेंड हैड ऑलरेडी कट केक बिफोर आई रीच द पार्टी। माई फ्रेंड हैड ऑलरेडी कट केक बिफोर आई रीच द पार्टी। ओके, क्लास में पहुंचने से पहले ही, स्टूडेंट की क्लास में पहुंचने से पहले ही टीचर पढ़ा चुका था। टीचर हैड ऑलरेडी टॉट बिफोर स्टूडेंट रीच द क्लासरूम। ठीक है, तो इस तरीके के एक्शन जहाँ पे दो एक्शन हैं और दोनों ही एक्शन पास में हुए हैं, लेकिन एक एक्शन दूसरे एक्शन से पहले ही हो चुका है, तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। ओके, सेकेंड सिचुएशन इज व्हेन देयर इज नो नीड टू शो both actions together. Okay, there is no need to show both actions, but there is a denotion. एक डिनोशन है कि हाँ पहले कुछ हो चुका है, कुछ होने से पहले कुछ हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर बोलूँ कि मैं पहले ही प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुकी थी डेडलाइन से पहले। ठीक है, तो अगर मैं नहीं भी बोलना चाहूँ डेडलाइन से पहले, तो फिर मैं बोलूँगी आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट। आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट। तो इससे पहले से ही पता चल जाएगा, अगर आपने ये सेंटेंस बोला आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, मैं अपना प्रोजेक्ट पहले ही कंप्लीट कर चुकी थी, इसका मतलब कि कोई ना कोई ऐसा डेडलाइन रही होगी, कोई ना कोई ऐसा काम होगा जिससे आपने पहले ही वो काम कर लिया।
ठीक है, तो आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट। और बोलना चाहते हैं कि डेडलाइन से पहले, तो बिफोर द डेडलाइन, बिफोर द डेडलाइन। ओके, तो इस तरीके के सेंटेंसेस भी आपको किस में बनाने हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाने हैं। सो दिस इज द यूसेज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द यूसेज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस एंड what is the difference between past indefinite and past perfect tense, right? So this is all about this video. Thank you so much for watching this video. Kindly subscribe my channel, like my videos, and kindly write your motivating comments, because your comments motivate me a lot. So thank you so much.